1 year Bible reading plan, Acts 28 chapter 17 verse से 31 verse, Psalms 30 verse, 30 chapter 31 chapter। हम एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 17 वचन से 31 वचन तक, भजन संहिता 30 अध्याय से 31 अध्याय तक। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एक्ट्स 28 चैप्टर 17 वर्स से 31 वर्स तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। And it came to pass that after 3 days Paul called the chief of the Jews together, and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me. But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar, not that I had out to accuse my nation of. For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you, because that for the hope of Israel I am bound with this chain. And they said unto him, We neither received letters out of Judea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee. But we desire to hear of thee what thou thinkest. For as concerning this sect, we know that everywhere it is spoken against. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. And some believed the things which were spoken, and some believed not. And when they agreed not among themselves, they departed. After that Paul had spoken one word, well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers, saying, Go unto this people and say, Hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and not perceive. For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. And when he had said these words, the Jews departed and had great reasoning among themselves. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 17 वचन से 31 वचन तक पढ़ेंगे। रोम में पौलुस 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया, और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी,
यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियाँ पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूं। 28 वचन, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। Psalms 30-31 पढ़ेंगे। Psalms 30, David praises God for his deliverance. He exhorts others to praise him. Psalms 30, David praises God for his deliverance. He exhorts others to praise him. A psalm and song at the dedication of the house of David. First verse से पढ़ेंगे। I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and hast not made my foes to rejoice over me. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing unto the Lord, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness. For his anger endureth but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. And in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by thy favor thou hast made my mountain to stand strong. Thou didst hide thy face, and I was troubled. I cried to thee, O Lord, and unto the Lord I made supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth? Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness, to the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Psalms 31. David, showing his confidence in God, craves his help. To the chief musician, a psalm of David. First verse say, In thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. But bow down thy ear to me.
Deliver me speedily. Be thou my strong rock, for an house of defense to save me. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privily for me, for thou art my strength. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. I have hated them that regard lying vanities, but I trust in the Lord. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adversities, and hast not shut me up into the hand of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly, for my life is spent with grief, and my years with sighing. My strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbors, and a fear to mine acquaintance. They that did see me without fled from me. I am forgotten as a dead man out of mind. I am like a broken vessel. For I have heard the slander of many. Fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. But I trusted in thee, O Lord. I said, Thou art my God. My times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. Make thy face to shine upon thy servant. Save me for thy mercy's sake. Let me not be ashamed, O Lord, for I have called upon thee. Let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave. Let the lying lips be put to silence, which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrapped for them that trust in thee before the sons of men. Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Blessed be the Lord, for he hath shewed me his marvelous kindness in a strong city. For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes. Nevertheless, thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee. O love the Lord, all ye his saints, for the Lord preserveth the faithful, and plentiful rewardeth the proud doer. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. भजन संहिता 30 अध्याय और 31 अध्याय पढ़ेंगे हम बीएसआई बाइबल में से। धन्यवाद की प्रार्थना। 30 अध्याय भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। पहले वचन से, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों,
उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को मृत्यु में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन 31 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां खुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हो। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों,
उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 वचन से 42 वचन तक। यहोशुआ की पुस्तक 22 अध्याय। ल्यूक 10 चैप्टर 38 वर्स से 42 वर्स। जोशुआ 22 चैप्टर। हम 2 years का बाइबल रीडिंग प्लान जब पढ़ेंगे तो अपने अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे। ऐसा करते हुए जब पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर का आवाज़ सुन सकेंगे। उस वचन के अंदर से परमेश्वर हमसे जो बात करता है, मार्गदर्शन करता है, हमको कुछ ऐसी गहरी बात दिखा देता है जो इससे पहले हमने कभी उस वचन के अंदर गौर नहीं किया होगा। परमेश्वर उसके भेद समझाएगा। उस सब कुछ हमने नोट्स में लिख लेना है और ऐसा लिखने के बाद हमने उस नोट्स के अनुसार जो हमको रोज़ के जीवन में चलना है वो सब हमने शुरुआत करना है चलने के लिए। कुछ भी हमको रोज़ के जीवन के हिसाब से मिल रहा है तो उसको हमने वहीं से शुरू कर देना है रोज़ के जीवन में चलने के लिए। और ऐसा करते हुए जब हम 1-2 साल के अंत में देखेंगे, परमेश्वर का वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने बड़े उपयोग में लेता है और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह भी दिया है। उस अनुग्रह का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।